બેની કરેલું Hello. Hello, am I audible to you? Someone confirm with me. Hello. Yes, sir. You are audible. Okay. So today we'll do an introduction class of power electronics. It's a new subject for you. Haven't studied about power electronics in your previous classes. Your power electronics lab will be taken by me and Mr. Raju Goswami sir. He is here with us. He will join with you shortly after. I'll give some introduction about the subject and about our syllabus, what we have. And the theory, I think, would be taught by Pankaj sir. So I'm sharing with you the syllabus of the labs that we have. Then I'll tell you briefly about your subject, that is power electronics. I'll give you some hint or idea about what you are going to learn in this subject, right? So I'm showing you the screen, showing you the syllabus that we have in our power electronics course. Is the PDF visible to all of you? Hello, I have shared the syllabus. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So this is the list of experiments that we have that we are supposed to perform in the lab. We talked about the experiments that we are going to conduct. We also met yesterday. The first read the experiments, single phase, half wave, full wave. You can see, go through the experiments for a while. Take a few minutes reading this. These are the 15 experiments that we have in our syllabus. Now it is not necessary that we'll be doing only these things, right? If possible, we can do more than this, or even things outside the syllabus when the time will come. As the syllabus progresses, we will see about that. So we talked about the modes of conducting your labs. They will be more or less the same. Number one, I told you about the virtual lab of IIT Bombay. So we'll be doing, if we get, then we'll be doing some experiments via virtual lab of IIT Bombay. Next is via MATLAB simulation, since we can make the circuits and conduct the experiments and show you the input and output. So at this moment of time, obviously, since we are at home and during this COVID period, and when the college opens, if
when the college opens, as in when the hardware is accessible for us. We are right now at lockdown state, so when the hardwares are accessible to us, we will show you how to conduct the experiments via hardware. And obviously, the recommendation that Pankaj sir gave yesterday, that we'll be sharing videos of practical labs where even if the experiments are not present in our lab, or maybe the experiments not we are not able to do that via MATLAB, then we can show you the videos of practical labs via various sources. We shall explain you the theory part, what is going to happen, what will happen in the experiment, and then I'll show the video and explain the video what is practically happening. It will give you the practical scenario of uh, how the experiments are going to conduct and what kind of results you are expecting, right? And now, since we are already through this part of practical syllabus, it will be better if you also look at the theory syllabus, right? Is the theory syllabus visible to you? Hello? Hello? Yes, sir. I've shared the theory syllabus. Is it visible to you? It says detailed Yes, syllabus, module 1, yes, module it 2. is. Okay. If you see that the Yes, sir. module, yes. Okay. The theory syllabus is divided into module 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts, right? There are 6 parts. It deals with various types. If you see the headings of the given modules, that is module 1 deals with power semiconductor devices. You need a basic of this part, semiconductor, basically semiconductor devices. You need a strong basic of this semiconductor devices. If you want to progress in this subject correctly, you need to know 2 subjects very thoroughly. Number 1 is the concept of semiconductor devices. Obviously, it is given here, power semiconductor devices. You have read about semiconductor devices in your electronic syllabus, I guess. So it will be better if you just brush up and revise that part, because the name of the subject is power electronics. So basically, you have to deal with everything related to electronics, right? First, the concept of semiconductor devices, and next, the concept of circuit analysis is important. You need to have an idea of circuit analysis. Okay. If you have a good basic concept of these 2 subjects, you can understand this power electronics subject very thoroughly and in a very good manner. It is a very important subject. It's a because this subject carries around, we have power electronics in 1 semester only. Like machine, we have in 2 semester, machine 1 and machine 2. Power system, we have 3 parts, power system 1, 2, 3 and 3 semesters. If we consider the marks that we get in the gate exam, you are acquainted with gate exams. Many of you will attend the gate exams for your future purpose. But in machine 1 and 2, we get around 8 to 10 marks from machine 1 and 2 in gate exam. Same for power system, we got around 8 to 10 marks. But this power electronics alone carries 8 to 10 marks, and we study it only 1 subject. So this is very important subject, especially for the electrical engineering students, because in the not only in BTech level, in the MTech level, or people from electrical engineering are doing their PhDs and conducting various progressive works related to power electronics, right? So this is a very important subject, not only the practical but the theory part also. Now the basic I was telling about is power semiconductor devices first. Then we will be doing various converting parts, that is converters, AC to DC, DC to DC. I'll tell you about these things briefly. I'll give you a brief introduction about the subject power electronics. Just look at the syllabus first, right? This is AC to DC converters, DC to DC buck boost converters or choppers. There is single phase voltage source inverters. We also have current source inverters. Here it is written: voltage source inverters, current source inverters. If possible, then I'll show you current source inverters and voltage source inverters via MATLAB simulation. We also have 3 phase
single phase voltage source inverter. Then we have 3-phase voltage source inverters, AC voltage controllers. Voltage controllers we need for various application purpose. And you have this suggested reading books. Rashid is a good book. We have 4 books written here. Rashid is good. Pankaj sir will be giving you your suggestions for the books. For the theory part, you will get some suggestions from there. Rashid is good. I have seen we have another book called PS Bhimra. Right, it is not written in this list, but I have read that. PS Bhimra is quite good. It will cover the parts and will the language is quite understandable. Right, and when Pankaj sir will come, he will also tell you about the books and the resource materials. Okay. Now, let me tell you something about the power electronics. It's a have you gone through the syllabus? Hello? Do you have anything to ask from the syllabus? Or do you have anything to see? Do you need to see the practical syllabus again? If you want to, I'll share it again. No, sir. Huh? No, sir. No, sir. नहीं सर है सिलेबस है हम लोग सिलेबस तो है, अभी सामने एक बार देख लो. ठीक है. Now let me tell you something about the subject power electronics. The subject power electronics actually deals with few watt level, say mobile chargers up to megawatt level industrial drives. Right. We have applications in mobile chargers to megawatt level industrial drives. The drives is the word is I think new for you. In this semester you have power electronics. In the next semester you will get electrical drives. Drives are the industrial applications of power electronics. So these are related topics. If you understand this power electronics better, you will get the concept of drives, electrical drives better. Right. Now in the supply, since you have studied power system, what do we get from the grid? In the grid level supply, we get 230 volt 50 hertz single phase AC or higher volt levels 3-phase AC. Right? Am I right or not? Hello? Hello? yes sir. If I'm asking you, you need to answer me. In the grid level, what kind of supply do we get? We get 230 volt 50 volt AC single phase or higher level volt AC, sorry, 3-phase AC or single phase AC. This if we give this किलो एम्पियर किलो वोल्ट में जाता है सर. हाँ क्या बोलो किलो फिर से? एम्पियर किलो वोल्ट में होता है सर. तो हायर लेवल मैंने बोला किलो ना. एम्पियर किलो वोल्ट में होता है ना सर. हायर लेवल का मतलब क्या होता है? मैं 230 से हायर लेवल बोल रहा हूँ. तो जब ये सप्लाई when this supply is given to an AC motor, the AC motor will rotate at a particular speed. Right. Now if we are supposed to vary this speed or maybe say charge this battery, तो क्या करना पड़ेगा? We need to convert this AC power to DC or convert this AC power to AC. AC power to AC conversion मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, फिक्स वोल्टेज लेवल होता है, जहां से हम एक उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लेवल या वेरिएबल वोल्टेज लेवल में लेके जाएंगे. नहीं तो और बोथ मींस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज लेवल में लेके जाएंगे. ये एसी टू एसी कन्वर्सन होता है. ठीक है. और एसी टू डीसी तुमको पता है, जैसे बोल रहे थे, क्योंकि अब जितना तुम मेगावाट लेवल जो बोल रहे थे उतना आएगा अगर कनेक्शन ग्रिड से, उसको हम डायरेक्ट बैटरी चार्ज तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए कन्वर्सन करना पड़ेगा. So for this purpose, for this kind of conversions, AC to DC or AC to AC, we use power converters. Okay. Power converters मतलब जैसे हम लोग सिलेबस में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तुमको सर बताएंगे जब थ्योरी में शुरू होगा. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स एक्चुअली डील्स विद 4 काइंड्स ऑफ कन्वर्टर्स. पहला AC टू DC कन्वर्टर, क्योंकि सप्लाई AC में आ रहा है, AC टू DC कन्वर्टर जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर. दूसरा AC टू AC कन्वर्टर, जिसमें हम लोग सेम या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या तो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड कंट्रोल करेंगे, या तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, या तो दोनों कंट्रोल करेंगे जो AC सप्लाई आ रहा है उसका. ठीक है. तीसरा थर्ड इज DC टू AC कन्वर्टर,
डीसी टू एसी कन्वर्टर को हम कहते हैं इन्वर्टर, जो बहुत लोग के घर में है, तुम लोग को पता है, उसके बारे में पढ़ोगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ोगे इन्वर्टर का। और चौथा होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जो चॉपर कहते हैं। वहां पे तुम एक जगह देखे भी थे सिलेबस में, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में लिखा था। ठीक है, तो दीज आर ऑल ऑफ द कन्वर्टर्स आर बेसिकली मेड ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, since these are made of power semiconductor devices, during the course of time you will be studying lot about diodes, SCR, IGBT, MOSFET etc. यहाँ पे तुम सिलेबस में भी देखो, इसीलिए मैंने सिलेबस निकाला था ताकि तुम लोग देख पाओ। मैंने जो जो तुमको बोला, AC टू DC रेक्टिफायर देखो, सिंगल फेस, हाफ वे, फुल कंट्रोल रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सारे चारों चारों के चारों इसके अंदर ही हो गए। AC टू AC ब्रिज कन्वर्टर्स, थ्री फेस, हाफ वेव, फुल वेव, देखो थ्री फेस कन्वर्टर। SCR के बारे में मैंने बोला, तुमको पढ़ोगे अभी SCR। AC वोल्टेज कंट्रोलर यूजिंग ट्रायक, थायरिस्टर, SCR थायरिस्टर तो शुरू में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बक बूस्ट कन्वर्टर है, तुम DC टू DC कन्वर्टर का सिलेबस में देखे थे अभी, थ्योरी वाला सिलेबस में बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर होता है, ये DC टू DC में आता है। फंक्शन ऑफ इन्वर्टर ट्रेनर, जो अभी तुमको मैंने बोला घर में तुम लोग के इन्वर्टर है, उसके ऑपरेशन तुम पढ़ोगे, टू स्टडी द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर ट्रेनर, ये हम लोग का प्रैक्टिकल में ही है। फिर कम्यूटेशन सर्किट है, क्लास ए क्लास बी, इसके बारे में जैसे थ्योरी जाते रहेगा उसके बारे में देखोगे। फिर साइक्लो कन्वर्टर होता है, BLDC मोटर होता है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी स्टडिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बाकी उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तुमको नेक्स्ट सेम में ड्राइव में दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग तो प्रैक्टिकल लेंगे, मैं और राजू सर। राजू सर, राजू सर, I think he's out. Okay, do you have anything to ask from the syllabus? Hello? Do you have anything to ask नहीं from the सर। syllabus? ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी दूसरा प्रैक्टिकल शुरू हुआ है? तुम लोग का कोई प्रैक्टिकल शुरू हुआ है नहीं क्या? सर। नहीं सर। ठीक है, तुम लोग का आज तो है, कल शायद कुछ नहीं है। परसों शायद तुम लोग का सिमुलेशन लैब होगा, फिर पंकज सर ही कराएंगे सिमुलेशन, पंकज सर कराएंगे और वो सप्तर्षि सर कराएंगे जो तुम लोग का मशीन करवाते थे। ठीक है, तो मैं तुम लोग का पावर सिस्टम 2 और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही लूंगा अभी। बाकी नेक्स्ट टाइम में ड्राइव्स भी मैं ही लूंगा। तो बाकी यही है सिलेबस इन शॉर्ट। सिलेबस तो 4 ही टाइप का कन्वर्टर है, लेकिन सिलेबस इतना छोटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला तुम लोग को, एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर से 8 to 10 मार्क्स आता है, और बहुत अच्छा सवाल आता है। ऐसा नहीं कि कर लो बन जाए, कंट्रोल सिस्टम जैसा नहीं है। कंट्रोल सिस्टम फिर भी मोर और लेस तुम जो बनाओगे, जो तुम पढ़ोगे, इट्स इजियर सब्जेक्ट। डिजिटल तुम लोग के इजियर सब्जेक्ट है। सर्किट तुम मोर और लेस ठीक ठाक करोगे, वही सब क्वेश्चन आएगा। लेकिन वेरिएशन जो आता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। तो जस्ट थ्योरी पढ़ोगे, क्लास मिस मत करना इसका। ठीक है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कम नंबर नहीं आता है ऐसा छोटा मोटा सब्जेक्ट। जैसे बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, जैसे तुम लोग का EMT है, इलेक्ट्रोमोटिव, EMT हो गया, मेजरमेंट हो गई, इससे जनरली गेट के सिलेबस में आता है 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, ये कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, ये भी एक ही सेमेस्टर का है, लेकिन 4 to 5 मार्क्स आता है। लेकिन ये तुम लोग का थर्ड, ये बहुत ज्यादा आता है। 10 मार्क्स कम नहीं है गेट में, बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आता है, थोड़ा वेरिएशन में आता है। ठीक है, तो ये जब सिलेबस बढ़ते रहेगा, एक तो मैंने बोला जो पहले तुमको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिवीजन कर लो, क्लास मत मिस करना। दूसरा, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सर्किट एनालिसिस रिवीजन पूरा रिवाइज कर लो जब से क्लास शुरू होगा उससे पहले। ठीक है, जैसे जैसे क्लास चलते रहेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग तुम क्वेश्चन भी सॉल्व करना, क्योंकि मुझको पता है अभी 6 सेम चल रहा है, नेक्स्ट गेट में बहुत लोग बैठेंगे तुम लोग के क्लास से, और उसके फर्दर भी गेट हो, दूसरा टेक्निकल एग्जाम्स भी हो, ये इंजीनियरिंग सर्विस में भी अगर बैठोगे, उसमें भी बहुत ज्यादा नंबर आता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर का लेवल का जो एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें ये मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल से, गेट में कंट्रोल सिस्टम से अराउंड 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स आता है, अराउंड 8 मान लो। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट, सर्किट से अराउंड 8 मार्क्स आता है। ऐसा नहीं है कि तुम यू हैव स्टडीड सर्किट इन 3rd सेमेस्टर। ठीक है, मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, लास्ट मोमेंट में भूल जाओगे
बहुत नंबर आता है मिस हो जाएगा, और आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट से तुम देखते हैं कैसे करवाया जाता है। या तो मैटलब से करवा दूंगा सर्किट, नहीं तो अगर लैब एक्सेस कर सकेंगे तब तो मैं हार्डवेयर दिखा दूंगा। ठीक है, और नहीं तो तुमको प्रैक्टिकल जितना एक्सपीरियंस दिया जाए। नहीं तो अभी तो ये 3-4 उपाय बोला है मैंने, फर्दर अभी देखते हैं और कुछ अगर वेरिएशन कर पाए एक्सपेरिमेंट्स तुमको दिखाने के लिए, वो भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कहाँ पर हैं सर, कॉलेज में? कॉलेज में नहीं है, अभी लॉकडाउन था ना, घर आ गया, सब घर में। तो कॉलेज ऑफ है सर? कॉलेज कॉलेज हाँ, ऑफ ही है। वहाँ तो घुसना, झारखंड में घुसने ही तो मना किया है सबको। कॉलेज मोटा मोटी ऑफ ही है। ओ, जो भी लेक्चर हो रहा है सब अपना डिवाइस से, जैसे मैं अपना लैपटॉप से तुमको मैटलब करवा रहा था, सर लोग भी अपना हम्म। लैपटॉप से अपना डिवाइस जो भी है, कोई मोबाइल से रिकॉर्ड करो के करा रहे हैं, वैसे ही चल रहा है मॉडल लेस। कॉलेज तो अभी देखते हैं फर्दर क्या होता है, तुम लोग ध्यान रखो अपना खाली, ठीक रहे ना। तो पंकज सर भी घर में है सर कि पंकज कॉलेज सर में है सर? कॉलेज में, मतलब हम लोग कॉलेज के क्वार्टर में रहते हैं। ठीक है, तो कॉलेज तो का वहां पर तो लैब लैब में तो जाने के लिए मिल ही सकता है ना सर? लैब में जाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ घर में, वहाँ पे लैब, हम लोग जब कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज का क्वार्टर में रहते हैं, पंकज सर तो कॉलेज का क्वार्टर में है। ठीक है, हाँ, मैं घर में हूँ। हाँ, मतलब तब आ गया था, जाने का चांस नहीं मिला, वो वहीं पे रह गए थे, वो आए नहीं। एक हाँ, दो लोग, अच्छा। पंकज सर, सप्तर्षि सर, वो लोग वहीं पे है, मतलब उनका फैमिली वहीं पे है, तो वहीं पे रहते हैं। अच्छा। तो हार्डवेयर दिखा फिफ्थ देंगे सेम अभी। का सर हाँ एग्जाम बोलो। नहीं होगा सर? फिफ्थ सेम का तो फिर पोस्ट फिफ्थ 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 सेम का तुम लोग को जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो अभी तक टेम्पोररी पोस्टपोनमेंट में है। अभी एग्जाम शायद होगा। अभी देखो, जैसे तुम लोग का, तुम जो बोल रहे हो जो हार्डवेयर दिखाने का बात अभी किए, जो मतलब लैब एक्सेस का बात, अभी तुम हाँ लोग का सर। देखो लॉकडाउन है। सेमेस्टर थोड़ा ना 1 महीना का है, सेमेस्टर तो 2 हफ्ता का नहीं है ना, तुम्हारा क्लास 2 हफ्ता हम्म। 1 महीने का है। खुल तो जाएगा हम्म। ही, टाइम तो मिलेगा, तो मैं हम्म। जाऊंगा ही वापस, तुमको दिखा दूंगा। ठीक है, हम्म। अब ये अभी अभी के लिए दीज आर द ऑप्शंस हमारे पास है अभी के लिए। इस कॉलेज तो क्या परमानेंट 6 महीने के लिए थोड़ी बंद है। अभी ठीक होगा, बाहर का सिचुएशन ठीक होगा तब हम लोग जाएंगे। ठीक है, जितना हो सके, जहां जहां हो सके हम लोग शो करवाएंगे सब। अब ये मत मान लो कि अभी कुछ दिन के लिए लॉकडाउन है, मतलब तुम्हारा पूरा सेमेस्टर, पूरा पावर ट्रेनिंग के लॉकडाउन हो जाएगा क्या? वो होगा। अभी ये तीन जी चार सर। ऑल्टरनेटिव वेज है हमारे पास। ठीक है, मोरलेस तुमको हम्म। फर्दर जब देखो, अभी तुम लोग अगर ट्रेनिंग करोगे कहीं पे, वो भी ऑनलाइन ही करोगे ना, जो इतने दिन से क्लास कर रहे हो। अभी इंडस्ट्रियल कोई कोर्स करोगे वो भी ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट, एक आदत डाल लो। हार्डवेयर दिखाया जाएगा, उसमें हम लोग का भी, हम भी हार्डवेयर में ही किए हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे, हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन भी देखो, वो भी करना पड़ेगा। ऑनलाइन में ऑप्शन ज्यादा है। हार्डवेयर में तुम जब देखोगे, तुम एक ही जगह का, मान लो मैं दिखा रहा हूँ तुमको कॉलेज का लैब, तुम सिर्फ वही देख पाओगे, है ना। जब ऑनलाइन तुम बहुत जगह, जैसे वेबिनार तुम लोग अटेंड किए हो शायद, है ना, कहाँ कहाँ का रिसोर्स पर्सन आए थे। अभी लास्ट सेम में हुआ था, फिर उसके पहले हुआ था, ये था, तुम लोग थे, जो पोलैंड से लोग आया था हम लोग का इंटरनेशनल सेमिनार। तो वो अगर ऑफलाइन होता, पॉसिबल था क्या? कितना कितना जगह का, शिवपुर से, आईआईटी से, या दूसरा दूसरा कॉलेज से, साउथ साउथ के कॉलेज से, जितना जगह से वेबिनार हुआ है, ऑनलाइन है इसलिए पॉसिबल हुआ है। तो हम लोग का एक्सेस बढ़ जाता है। हाँ, ये सही बात है कि हम लोग का वी आर हैबिचुएटेड विद हार्डवेयर इन स्टडिंग इन क्लासरूम्स। मेरा भी है, हम लोग भी किया था। मेरा टाइम में इतना वेबिनार थोड़ी थे, इतना ऑनलाइन नहीं था। तुम लोग का तो फिर भी ये एक्सेस बहुत ज्यादा है। मेरे टाइम में इंटरनेट भी इतना नहीं था। देखो, जब कॉलेज में आओगे, टाइम होगा जब मुझसे मुलाकात होगा तुम लोग का, कुछ लोग क्या हुआ भी तो था मुलाकात तुम लोग के साथ। ठीक है, तब हार्डवेयर का भी दिखा देंगे। ठीक है, बाकी अभी है, नेक्स्ट सेम है, नेक्स्ट सेम में भी ड्राइव्स का लैब करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा। नेक्स्ट सेम में अगर आईआईटी वी लैब है, तुम लोग का पीएलसी है, पीएलसी सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और कुछ पूछना है? लैब के क्लास कैसे होगा और सिलेबस ऐसा कुछ? क्लास तो शुरू होगा ही, थ्योरी क्लास शुरू हुआ है। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, तो
कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो नहीं तो बंद करता हूं मैं। और कौन था? सरोज, यस सर। अटेंडेंस लो तो अटेंडेंस लेके भेज देना मुझको। यस सर। ठीक है, अटेंडेंस ले लो। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हाँ, जो बोलना था वो तो मोर और लेस कल हो ही गया था, क्योंकि सेम इंट्रोडक्टरी क्लास था, जस्ट सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो सरोज हो गया, बंद करूं? ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिए। ठीक है, तो बंद करता हूँ, ऑफ करता हूँ यस आपके सर। लिए। नेक्स्ट जो जो, अच्छा फिर से बोल देता हूँ, 2-3 लोग शायद बाकी है गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर लेना। और ये सब अभी 6 सेम में हो, थर्ड ईयर में हो, अभी सारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम लोग का अभी मैं एक चीज ऐड हुआ है तुम लोग का सिलेबस में, ये पहले दूसरा स्कीम वाला सिलेबस में नहीं था, मैंने देखा। ये क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक है, जो शायद राजू सर ही पढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स तुम यस लोग के, सर। हाँ, है ना? हाँ। हाँ, मटेरियल्स तुम लोग का इसमें, इसका सिलेबस में है, गेट में तो नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी से 6 सेम में हो, अभी तुम लोग को घर में हो, अभी से मैं एक चीज तुम लोग को बोल देता हूँ, पहले से अभी तक जो जो सब्जेक्ट पढ़े हो ना, रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जब सिचुएशन ठीक होगा, जब एग्जाम शुरू होगा, जो उसमें तुम लोग बैठोगे, गेट इंजीनियरिंग सर्विस या जूनियर इंजीनियर, जो लोग डिप्लोमा के हो, जूनियर इंजीनियर में शायद बैठोगे नेक्स्ट जेई में, एसएससी जेई में, वो इस एग्जाम में, या स्टेट लेवल का एग्जाम निकलता है, या फिर बहुत सारा असिस्टेंट इंजीनियर वाला एग्जाम निकलता है, उसके लिए इस सेमेस्टर से रिवाइज करो। नेक्स्ट सेम में, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में तुमको फोर्थ ईयर में टाइम मिलेगा, लेकिन इस सेम से तुम पिछला वाला का रिविजन करते रहो। ठीक है, तो प्रिपरेशन अच्छा होगा। और पार्ट टाइम इसका कोई क्लास मिस मत करना, थ्योरी का हो, प्रैक्टिकल का लो, किसी का भी। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं बंद करता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके।